So let me know when you guys can see my screen, please. Okay, is my screen visible? Hanji, yes. Certainly perfect. So what I wanted to quickly go through, I mean, obviously this is our third session in this DevOps series, but I've just given just a little time in just covering up some agenda for our sessions. I think I sort of had this idea in the mind, but I just to formalize, what are the areas we will cover. And there were some really good questions on the back of our last session. People, some of the guys were wondering that whatever the discussion we are having, how is that really linked with DevOps? So, I mean, it all kind of ties together, like in a chain from how we're starting and where we'll end up. But I think I'll quickly walk you through the agenda for these sessions, and then we'll continue with the session, right? Um, so really, I think if you look at the last session, we kind of, just looked at the DevOps end-to-end process. We started setting up the Azure DevOps instance. We started setting up some user stories in that instance. We looked at how you can define your sprints, how you can time your sprints, 3 week, 4 weeks. We added some tasks in the backlog. And then we looked at how you can set up your team capacity for a sprint. And, it was more around task planning and task adding. Um, Now, in today's session, we will mainly focus on the Git aspects, the code repository aspect of Azure DevOps. Um, and we will first of all look at the branching strategy, and then we will set up a Git branch. We will basically try and publish a very small sample web application, a .NET Core web application onto that branch. And we will look at the pull requests, creating the pull requests, approving the pull requests, all that experience, all around, basically revolving around the Git. So that's our target for today. And I'll quickly give you a brief summary of what the following sessions are and how we can arrange and organize the following sessions. And again, the feedback would be feedback is welcome. We want to add stuff, remove stuff, and as we go along in the following weeks, we can obviously add more things to it. So next week we will. So basically, once we would have got our basic sample web application code on a Git repository kind of published, we need to start looking at then creating the pipelines, and this is where more the DevOps bits come into play. So we will start looking at how we're going to create build pipelines, how we're going to create release pipelines. But those build pipelines and release pipelines will do what? They will build our solution. They will then try to deploy our solution. But before we can build and deploy our solution, um, in parallel, we need an environment where the solution will be deployed to, right? And in order to create that environment, that's where we will focus on next week. So we will look at the ARM templates, so what are Azure infrastructure or Azure resource ARM templates, and how you can create an app service plan using those ARM templates. These two things will help us create an environment where we will be able to publish our website, right? If you look at the, अगर इसको मैं अपने पुराने वाले डिप्लॉयमेंट मॉडल पे से बात करूं, तो एक तरफ तो डेवलपर्स वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, दैट्स अ सोर्स कोड, और दूसरी तरफ जो है वो एक एडमिन का स्टाफ या एक डेवऑप्स का स्टाफ एक मशीन तैयार कर रहा है, और उस मशीन के ऊपर लेट्स से वेब सर्वर उसने इंस्टॉल किया. तो ये सारा जो सेटअप है मशीन का, वेब सर्वर सेटअप का, that's what this is about, but in the cloud world. And then we need to deploy their application onto that setup, right? So in session 5, this is where we will be doing the join up, where the developer code will end up going into that environment that we've created. So this will be the week after next. This is where we'll actually look at YAML-based pipelines, which will do the build, and again YAML-based pipeline, which will publish our code into this new Azure environment, right? Then there are some interesting aspects around. There is something called
this was announced just, I think, 3 months ago. There is something called Azure Development Environments. For guys who are already in the advanced stages, I would encourage them to read about this. And I would also encourage them to read about Bicep. This is also a very recent concept. This is a scripting language on top of ARM templates. So basically, in session 4, we will look at what are ARM templates and how they can be used to create the resources. But then further, after a couple of weeks, we will look at it's almost brand new scripting language announced by Microsoft, which will help us behind the scene. This language creates those ARM templates. So I think this is a very interesting concept. I mean, I'm currently going through this and learning this myself. And by the time we reach session 6, we will look at some examples and we will do some practical examples of these as well. So that's the general idea. हाँ, एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनकी शक्लें देख के आइडिया हो रहा है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही. सो ये जो आर्म टेम्पलेट्स हैं या ये जो चीज़ें हैं, अभी सिर्फ ये जहन में रख लें कि ये कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इवेंचुअली आप लोगों को समझ में आ जाएंगे. एंड टू एंड करना क्या है, एक एप्लीकेशन है जो कि एक डेवलपर या एक टीम ऑफ डेवलपर्स बना रही है, ठीक है. उसका कोड गिटहब या किसी सोर्स कोड में जाना है, उसने कनेक्ट होना है एक ऐसे सिस्टम से कि जहाँ पे आपकी यूजर स्टोरीज और टास्क है, राइट. और फिर एक डेवऑप्स की टीम होगी कि जो कि जब डेवलपर कोड बना लेता है उसने डिप्लॉय करना होता है. तो जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों की समझ में आती जाएगी. आर्म क्या चीज़ है, YAML क्या चीज़ है. अभी अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. बिल्कुल, ये इसमें थोड़ा सा जार्गन है सारी एजेंडा में, लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे हम उन सेशन में जाएंगे, हम उसको डिस्कस करते जाएंगे, जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल हो. एंड इमरान, द पब्लिश लैंग्वेज फॉर दिस वेबिनार इज उर्दू. सो आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा उर्दू ज़्यादा बोले. ठीक है, ठीक हो थैंक यू. गया. यहाँ पे पब्लिक डिमांड की वजह से क्योंकि यहाँ पर एक दो बंदों ने ये फीडबैक दिया है कि इंग्लिश में थोड़ा सा ना वो समझने में जो प्रोसेसर है हमारा जरा स्लो है. ठीक है, कोई ऐसा नहीं है. बल्कि आई एम ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल इन उसको भी उर्दू में करने में ज्यादा कंफर्टेबल है. हाँ, वो हमारा वो कहते हैं उर्दू में, जैसे वो होता है ना वीबी में मैसेज बॉक्स डॉट शो, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि पैगामी डब्बा डॉट यहाँ तक नहीं जाएंगे. लेकिन लेकिन हम ये है कि चले उर्दू में इसको डेफिनेटली करते हैं. अच्छा, आई थिंक समरी वाइज इरफान ने अच्छा उसको समराइज किया है कि इवेंचुअली जो हम करना चाह रहे हैं वो यही है कि डेवलपर ने जो एक वेबसाइट बनाई है अपने कोड में, उसको हमने लाइव चलाना है एक एनवायरनमेंट में. ठीक है ना. तो अगर एंड टू एंड देखेंगे तो ये वही लाइफ साइकिल है जो तकरीबन आप सारे प्रोजेक्ट्स में इस लाइफ साइकिल से गुजरेंगे. जहाँ पे स्टार्ट है, गिट रिपोजिटरी का सेटअप है, टीम में फिर कोड सारे लिख रहे हैं, वाइल साथ साथ एक एनवायरनमेंट तैयार हो रहा है. वो एनवायरनमेंट प्रोडक्शन का हो सकता है, प्री प्रो टेस्टिंग, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स रेडी हो रहे हैं. एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं? वो मशीनें जहाँ पे फाइनली आपकी एप्लीकेशन चलेगी, और फिर वो एप्लीकेशन का एक प्रोसेस, ऑटोमेटेड प्रोसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है ना. वरना मैनुअली तो हम जिस तरीके से चलेंगे, थोड़ा सा सीक्वेंस और स्ट्रक्चर से लेके चलेंगे कि ऑटोमेशन के थ्रू कंटिन्यू, क्योंकि CI/CD का हम सारा फॉलो कर रहे हैं. तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, तो कैसे वो सारा कोड उस एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली जाएगा, ये सारी चीजें सेशन में कवर होती जाएंगी. ठीक है ना. और यस, वी कैन ऑलवेज ट्वीक आवर स्पीड एंड डिटेल. जहाँ पे भी आपको सवाल है, कुछ चीज नहीं समझ आ रही, तो प्लीज फील फ्री रखें. बट इन रफली ये एजेंडा है. अभी आगे वाला सेशन 5, सेशन 6 थोड़ा सा ब्लर है मेरे लिए भी, लेकिन जैसे जैसे हम चलेंगे, टीम के साथ लेके चलेंगे, तो इसको हम एडजस्ट भी करते जाएंगे साथ साथ. ठीक हो गया. अच्छा, चले अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे. अच्छा, इससे पहले लास्ट वीक वाला थोड़ा सा एक कुछ डिस्कशन हुई थी हमारी क्लोजिंग में कि गाइस विल ट्राई टू गो एंड उसको थोड़ा सा सेटअप करने की कोशिश करेंगे Azure DevOps को. तो किसी के पास कोई सवाल वगैरह अगर है तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप इसको ना थोड़ा सा कंटिन्यू रखें. हमारे पास वो जो हमारे पास चैट ग्रुप भी है डाओ का, हमारे पास ये अब टीम्स का डिफरेंट फॉरम्स हैं.
तो कोशिश करें कि आप चीज़ों को ट्राई करें हैंड्स ऑन, और सवाल पूछने की कोशिश करें, मेरे से पूछें, इरफान, ठीक है ना, और अपने कोलीग के साथ पूछें। अभी तक इंटरेक्शन बहुत लो है, आई वुड से, उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, सवाल जवाब की तरफ आएं, ताकि पता लगे कि ठीक है, अब आप लोग ट्राई भी कर रहे हैं, सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी सवाल जो है वो बुरा सवाल नहीं है, बिकॉज कि आप लर्निंग स्टेज में हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि सवाल जवाब जरूर करें, और अगर आपने नई डेवऑप्स को टूल को एक्सप्लोर किया तो उसको स्टार्ट कर दें, उसको ना ये इसको सेटअप करना शुरू कर दें, और साथ साथ सेशन में जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा, आई वुड इंकरेज कि आप खुद से भी अपने एक पैरेलल इंस्टेंस में वो काम करते जाएं। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आपके सामने हमने 2-3 यूजर स्टोरीज डाली थी, सैम्पल एप्लीकेशन भी जो हम रखेंगे वो बहुत बेसिक्स ही रखेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा हैवी कोड नहीं हमने करना, क्योंकि फोकस हमारा कोडिंग नहीं है और एप्लीकेशन की डेवलपमेंट का नहीं है, फोकस हमारा डेवऑप्स है, सीआई। तो एक बहुत बेसिक एप्लीकेशन को हमने एंड टू एंड उसको सेटअप करके डिप्लॉय करना है। तो अगर आप साथ साथ इसको करते जाएं तो आई थिंक आई वुड रियली रियली इंकरेज दैट यू विल आल्सो एक्सपीरियंस, और सीखोगे भी और एंजॉय भी करोगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम गोना स्टार्ट। अगर कोई सवाल था लास्ट वीक से तो प्लीज चैट में कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सेशन में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, लास्ट वीक हमने ये डेवऑप्स dev.azure.com पे हमने एक प्रोजेक्ट सेटअप करना शुरू किया था, ये डाओ वेब प्रोजेक्ट के नाम से। इसी को हम आगे लेके चलेंगे। इसमें हमने बोर्ड एक सेटअप किया था, कुछ वर्क आइटम वगैरह हमने इसमें डाले थे। एक चीज मैं आपको दिखा दूं जो इसमें इंटरेस्टिंग है, वो है ये डिलीवरी प्लान। आपके जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो टीम लीड है, ये उसके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, और आपको अपने प्लान को कस्टमर्स को कम्युनिकेट करने के लिए भी फायदे में रहेगा। इसमें आप ये दिखा सकते हैं कि देखें, ये बड़ा अच्छा, इसमें एक गैंट चार्ट सा व्यू सा मिल जाता है आपको, जिसमें आपको मंथली, ये देखें, ये इवन ये भी दिखा रहा है, ये टुडे जनवरी में तकरीबन यहाँ पे आज का दिन है, ठीक है जी। तो और ये नीचे स्टोरीज आ रही हैं इसके। तो हो सकता है मुझे मुझे लगे कि मेरी टीम जो ये वाली स्टोरी है, एज ए मिसाल है, वो यहाँ पे करेगी, तो सिर्फ ड्रैग ड्रॉप से आपके पास एक प्लान बन जाता है। तो अगर आपका 3 महीने का प्रोजेक्ट है, 4 महीने का प्रोजेक्ट है, तो ये बड़ा अच्छा व्यू है, ठीक है, अपने कस्टमर को दिखाने के लिए, करंट प्रोग्रेस दिखाने के लिए, करंट टीम के साथ शेयर करने के लिए। ये एक लास्ट बिट थी जो हमने लास्ट टाइम कवर नहीं की थी, बाकी चीज़ें हम ऑलमोस्ट सारी कवर कर गए थे। अच्छा जी, अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट स्टेज में, जो कि है रिपोजिटरी, ठीक है। अच्छा, रिपोजिटरी की हमने फर्स्ट सेशन में बड़ा इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा देखा था हमने, कि इसकी ज़रूरत क्या होती है कोड रिपोजिटरी की, टीम में आपस में काम करने में। तो उसकी मैं बिल्कुल एक ब्रीफ समरी दूंगा दोबारा से। वो यही है कि आप लोग अगर एक प्रोजेक्ट पे 3-4 लोग काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली फाइल्स के साथ काम करेंगे, तो यू नीड अ सिस्टम जो कि फाइल मेंटेन कर सके, उनकी ट्रैकिंग कर सके, ठीक है, वरना मैनेजेबल नहीं रहता। अगर आपके पास एक फोल्डर है जिसमें फाइलें पड़ी हैं, लेट्स से पाइथन की या डॉटनेट की, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं और अब आपके साथ एक कोलीग बैठा है, उसने भी आपके साथ मिलकर उस पर काम करना है, तो यू नीड अ सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम, एक रिपोजिटरी का सिस्टम चाहिए जो कि गिट है जिसके लिए। अगर ये नहीं होगा तो आप इमेजिन करें आपको क्या करना पड़ेगा। आपको वही फोल्डर उसको कॉपी करके देना पड़ेगा यूएसबी में, या कोई एक नेटवर्क शेयर बना के, फिर आप लोग मिलके एक दूसरे के फाइलों के साथ काम करने की कोशिश करोगे, फाइलें एक दूसरे के पास कॉपी पेस्ट करोगे, तो एक दूसरे का काम ओवरराइट हो जाएगा, हिस्ट्री कोई भी नहीं होगी, किसने क्या चीज़ की कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो इस सारी चीज़ों के लिए किसने किस फाइल पे क्या काम किया, क्या हिस्ट्री है, और मल्टीपल टीम्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकें, दैट्स फॉर दोज रीजंस वी नीड अ गिट रिपोजिटरी, ठीक है। अब हम इसको सेटअप करते हैं। इसको सेटअप करने से पहले बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं कि मैंने एक डाउ का एक फोल्डर बनाया है अपने पास यहाँ पे सी ड्राइव में, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली तो फाइल्स ही हैं, सोर्स कोड मेरा फाइल बेस्ड होता है। मैं एक एक नई वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ और उसको हम फिर गिट रिपोजिटरी में लेके जाते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे जो पहले से पड़ी हुई है। लेट मी क्लोज दिस वन एज वेल, सोल्यूशन को क्लोज कर देते हैं। मैं इस एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो। मेरे पास ये डेवलपर वर्जन ही है, ये भी फ्री वर्जन है। मैं यूज कर रहा हूँ 2022, ये लेटेस्ट है और ये फ्री है फॉर यू टू यूज एज ए डेवलपर, ठीक है जी।
आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैं नॉर्मली कम्युनिटी विजुअल एडिशन है स्टूडियो ना? यूज करता हूँ जी। ये कम्युनिटी कम्युनिटी एडिशन, एडिशन है, राइट? जी बिल्कुल, ये आप देखें कम्युनिटी एडिशन। राइट, इसमें थोड़ा सा ना फर्क विजुअल स्टूडियो कोड से ऐसे है कि कुछ टूलिंग शूलिंग जो है वो इंटीग्रेटेड आ जाती है इसके अंदर, बट अगेन वी प्रॉब्ली डू अ सेशन ऑन दिस एज वेल समडे, बाद में भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, दैट्स अ गुड आइडिया। कि विजुअल स्टूडियो से रिलेटेड इटसेल्फ टूल के क्या फीचर्स हैं, बहुत सारे हैं इसमें। यूनिट टेस्टिंग की सपोर्ट, कोड एनालिसिस की सपोर्ट, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उस पर एक सेपरेट डिस्कशन की जा सकती है। मैं ऐसे में दोनों ही यूज़ करता हूँ, मैं कोड भी यूज़ करता हूँ और मैं विजुअल स्टूडियो भी यूज़ करता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन के, ठीक है ना, मुझे कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। कोड जो है ये बड़ा लाइट वेट सा है, और इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस की सपोर्ट है। विजुअल स्टूडियो जो जनरल ये वाला है, अगर आप डॉट नेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डॉट नेट कोर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी टूलिंग की सपोर्ट है, ठीक है ना, कोड स्टाइलिंग और कोड एनालिसिस, बहुत सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो नॉर्मली डेवलपर टीम में होनी चाहिए, वो इसी टूल काफी फैसिलिटेट करता है, ठीक है जी। तो इसकी डिटेल में हम डेफिनेटली वी कैन हैव अ सेशन, सेपरेट सेशन ऑन अबाउट दिस। तो अभी हम वापस जाते हैं, हम इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप इमेजिन करें हमारे पास अभी think इसने लॉक किया होगा फोल्डर। Let me just make sure I close these things and then try to get rid of this. Yes. तो मेरे पास बिल्कुल खाली स्लेट है, मेरे पास एज ए मेरी डेवलपर मशीन में कोई फाइल नहीं पड़ी और मैं यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक विजुअल स्टूडियो में ही एक बेसिक सा एक टेम्पलेट वेबसाइट बनाते हैं और उसको गिट रिपोजिटरी में लेके जाने की कोशिश करते हैं। So I'll say create a new project और मैं यहाँ पे चूज करूंगा ऑप्शन .NET Core वेब एप्लीकेशन की। जिसका नाम हम अभी डिफॉल्ट देते हैं, वेब ऐप 1। Obviously we will give a proper meaningful name when we are in a project. जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कोई चीज़ है जो आपको अच्छे तरीके से सेटअप करनी चाहिए, अपनी टीम के साथ एग्री करनी चाहिए। तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस पे भी एक नेमिंग कन्वेंशन इटसेल्फ एक पूरा, मैं साथ साथ असल में ना चीज़ें ऐड करता रहता हूँ इरफान, ताकि मेरे इंसान ना निकल जाए। If you don't mind, I'll quickly add a couple of things here, उसको बाद में देख लेंगे। Naming conventions, dev plus infrastructure, दोनों मेरे कम विजुअल स्टूडियो पे भी और भी बात करेंगे। हाँ, ओवरऑल इसको अच्छा, ना बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक बकेट बना लेते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस किया करेंगे। ठीक हो तो ठीक है जी। फिलहाल मैं इसको I'm gonna say go for it, configure HTTPS डिफॉल्ट ले जाऊंगा अभी इसको। अभी डॉकर पे इसको नहीं लेके जाएंगे, इसको स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। ये एक पूरा टेम्पलेट सा बना देता है एक वेब एप्लीकेशन का विजुअल स्टूडियो, जो आप यहाँ देखेंगे राइट पे इसने कुछ फाइलें वगैरह बना दी हैं। मैं इसको एज इट इज रन करता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने ये प्ले का बटन दबाना है जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज रनिंग और वेब एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसको यहीं से चला के देख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये चल गई है, कोई एरर होता, कोई इशू होता तो वो यहाँ पे हमें वो ब्रेक कर जाती। तो ये अब बेसिक वेब ऐप है, ये अभी चल गई है। अभी हमने इसको यहीं तक रखना है, ज्यादा आगे नहीं इसको कुछ लेके जाना, ना ही हमने इसको ज्यादा कुछ चेंज करना है, ठीक है। अब इमेजिन, अब आप यहाँ देखेंगे तो मेरे ये लोकल फोल्डर में ये वेब आ गई है, उसकी फाइल्स वगैरह सारी आ गई हैं। अब इसको मैंने गिट रिपोजिटरी में लेके जाना है, ठीक है जी। ये हमारा टारगेट है जो है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब रिपोजिटरी को क्रिएट करने से पहले बहुत छोटी सी एक बात करते हैं ब्रांचिंग स्ट्रेटजी की, ठीक है ना। तो एक अच्छी स्टैंडर्ड जो है वो ब्रांचिंग स्ट्रेटजी है। इसको हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकली कवर किया था, मैं उसका भी जल्दी से एक रिकैप कर देता हूँ। एक ब्रांच जो है वो एक जब इट्स लाइक अ वर्जन ऑफ योर फाइल्स, और बाय डिफॉल्ट जो आपके पास गिट में जो ब्रांच होती है वो मास्टर के नाम से होती है, ठीक है। इस ब्रांच में ये समझ लें कि ये एक सर्वर पे एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है।
जिस पे आप लोग फाइल्स अपनी मशीन पे लेके आ सकते हैं। या लेट्स से हम मिसाल लेंगे 2 डेवलपर्स की, ये दोनों डेवलपर्स हैं। मास्टर की ब्रांच पे मैंने इनिशियल कोड अपना पहले पब्लिश कर देना, ठीक है जी, जो अभी हमने फॉर एग्जांपल कोड बनाया, वो सारा कोड फाइलें यहाँ पे जैसे भी फोल्डर आपको नजर आए हैं वो यहाँ पे लोकली उस ब्रांच में बन जाएंगे। इन फाइल्स को डेवलपर जो है वो अपनी मशीन पे पुल कर सकता है। ये पहला स्टेप होता है टिपिकली, पुल। जब वो पुल करता है वो ये बताता है कि जी मेरे पास ये जो मैं फाइल्स को लेके आ रहा हूँ कि मेरे पास मेरे लोकल मशीन पे किस डायरेक्टरी में पड़ा होगा। तो आप उसको एक डायरेक्टरी देते हैं और वहाँ पे आप इस रिपोजिटरी को आप क्लोन करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा वर्ड गलत बोल गया। हमारा पहला स्टेप है वो है क्लोन का। क्लोन का आप मीनिंग समझते हैं? क्लोन जो इंग्लिश का लफ्ज है, किसी चीज को क्लोन करना, कॉपी करना, ठीक है ना, एग्जैक्ट उसकी शेप, इमरान एक ठीक है ना। सेकंड जरा। जी जी एक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो अच्छा सबसे पहले सवाल ये है कि मास्टर में वो डेटा गया कहाँ से। अभी तो इमरान के सिस्टम पे वो फाइलें पड़ी हुई है ना, तो सबसे पहले कोई भी ठीक बंदा है, अगर आप उधर से स्टार्ट कर लें तो ठीक है इमरान। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आपने अच्छा पॉइंट किया। तो पहले हम वहां से लेते हैं, लेट्स से ये दिस वाज इमरान मशीन, जो भी डेव लीड है जिसने पहली बार सिस्टम को या फाइलों को प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहा है, तो वो ये काम करेगा कि वो अपनी मशीन से यहाँ पे उस कोड को फर्स्ट टाइम पब्लिश करेगा। ये हमारा डेफिनेटली, आपने सही कहा, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसको लाएंगे हम एज अ सेकंड स्टेप। तो अभी मैं पहला स्टेप कर लेते हैं, फिर हम बाकी की तरफ आते हैं। तो इसको अब मेरी मशीन पे यहाँ पे ये फोल्डर पड़ा है, पब्लिश करना है। और कहाँ करना है, ये मेरे पास ये गिट की रिपोजिटरी है, मैं यहाँ पे गिट की रिपोजिटरी में जाता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसमें आपके ना उसने हेल्प करने के लिए पूरा एक सेक्शन बड़ा इजीली बनाया हुआ है। वो कह रहा है कि पुश एन एग्जिस्टिंग कमांड लाइन से आप एग्जिस्टिंग अगर आपका कोड है तो वो आप पुश कर दें ये वाली कमांड चला के, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, या जो मैं तरीका यूज करता हूँ वो सिंपल तरीका है, क्लोन टू द कंप्यूटर। अब ये खाली है, ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई फाइल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका ये यूआरएल है मेरी गिट रिपोजिटरी का, बाय डिफॉल्ट ये यूआरएल दे देते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रिपोजिटरी पहले से बनी बनाई है मेरे प्रोजेक्ट के नाम से, जो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ बनाया था डाओ वेब प्रोजेक्ट, उस नाम से एक रिपोजिटरी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक बनी हुई है। आई कैन ऐड मोर रिपोजिटरीज हियर इफ आई वांट टू। अभी हम जो पहले से बनी हुई है उसी एक सिंगल रिपोजिटरी को यूज करेंगे, ठीक है। उसका ये यूआरएल है, इसको मैं कॉपी, ठीक है जी। और मैंने करना क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। एक सेकंड इमरान, क्योंकि यहाँ पर एक दो जी, लड़के ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फ्रेशीज हैं। जिन्होंने गिट अ, इंस्टॉल नहीं किया, हाँ, तो ये जो गिट का ठीक है। प्रोसेस है, गिट का जो प्रोसेस है वो, आई मीन दैट्स एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ना, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में तो नहीं इनको पढ़ाया जाता। सो जो गिट का प्रोसेस है इट्स द सेम फॉर गिटहब, बिटबकेट, या इवन फॉर दैट मैटर अज्योर वाली साइड पे, राइट। सो ये जो प्रोटोकॉल है ये वही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इसको अज्योर डेवऑप्स पे कर रहे हैं, गिटहब पे कर रहे हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, सही है। बिल्कुल, और ये जो गिट है ना, ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जो आप खुद से भी अपनी किसी मशीन पे भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये अच्छा पॉइंट इरफान ने रेज किया। ये जो हम यूज कर रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफरिंग है dev.azure.com पे। इसको आप, ये गिट हब भी है और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो गिट की सर्विस कर रहे हैं। आई थिंक जेंकिन्स के अंदर भी इसकी सपोर्ट है, और इस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो कि हम इस प्लेटफॉर्म को लेके चल रहे हैं तो इसी की जो हम एग्जांपल आगे लेके चल रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल आपने पहले सेटअप नहीं किया तो आपकी मशीन पे अगर आप गिट लिखेंगे ना तो वो कहेगा ये अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड है, ये तो गिट का मुझे पता ही नहीं गिट होता क्या है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने गिट को इंस्टॉल करना है। तो आप सिंपल गूगल में लिखें इंस्टॉल गिट, तो जो यहाँ पे सर्च आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ, गिट डाउनलोड्स, ये इसका पेज है जी। ये ये यूआरएल है, इसको मैं इस मीटिंग में शेयर कर देता हूँ चैट में।
तो बेसिकली यहाँ से आके आपने विंडोज के लिए गिट का इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप विंडोज यूज कर रहे हैं या लिनक्स या मैक, जो भी आपकी मशीन है। एक बार इसको इंस्टॉल कर लोगे, फिर जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कोई भी जब गिट लिखोगे तो फिर उसमें ऑप्शन आ जाएगी, वो टूल अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। विदाउट इंस्टॉलिंग ये आपकी डिफॉल्ट मशीन में नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें ये यूआरएल दिया उसने गिट की रिपोजिटरी का, इसको हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी गिट क्लोन वेब एप्लीकेशन 1 को करते हैं, यहीं से करते हैं गिट क्लोन स्पेस, और ये यूआरएल है जो मैंने ये सामने से यहाँ से उठाया है, ठीक है जी। ये गिट क्लोन की कमांड, ठीक है, कोई नहीं, एम्प्टी रिपोजिटरी, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि हमने इसको इस फाइल के साथ जब हम गिट क्लोन की कमांड चला दे देते हैं तो वो करता क्या है बिहाइंड द सीन, जो मेरा वो फोल्डर होता है जिस फोल्डर में मैंने रिपोजिटरी को क्लोन किया है उसके साथ बाइंड कर देता है वो उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को। अब मैं इस फोल्डर में जब भी कोई काम करूंगा, कोई फाइल बनाऊंगा, कोई चीज करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी जो लोकल मशीन में जो गिट का टूल है वो उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। ट्रैक वो हिसाब रखना शुरू कर देगा कि अब इस फोल्डर में हो क्या रहा है, इसमें कोई फाइल ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है, अपडेट हो रही है, वो इस चीज की ट्रैकिंग रखना शुरू कर देता है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आ गया डाओ वेब प्रोजेक्ट, असल में वो फाइल वेब एप्लीकेशन मैंने बाहर बना ली थी, इसको अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे तो मैंने वो कमांड दिया, उसमें जो मेरा ये डिफॉल्ट वेब प्रोजेक्ट का नाम था, इस नाम से एक फोल्डर बना दिया मेरे पास। यहाँ पे ये जो फोल्डर है ये ट्रैक हो रहा है मेरी गिट रिपोजिटरी के साथ। इसमें अगर मैं एक बेसिक सी फाइल यहाँ पे डालता हूँ, रीडमी टेस्ट फाइल कर देते हैं और इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज जस्ट ए सैंपल फाइल, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ है, एक फाइल मैंने सिंपल उस फोल्डर में एक सिंगल फाइल मैंने ऐड की है, ठीक है जी। अब अगर मैं आपको अब टूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं, गिट के अगर चेंजेस दिखाऊं, और मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर करता हूँ, ओपन फोल्डर, और हम जाते हैं जो हमने इमरान, इज इट पॉसिबल कि हम कमांड लाइन पे रहे, बिकॉज अगर कुछ ज़्यादातर लोग अगर विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कोड में भी रह सकते हैं, इसके लिए कोड में भी हम आ सकते हैं। में आप खोलने फोल्डर आपने ओपन करना है, किसी टूल में वाला भी कर सकते हैं, हम इसको मिक्स थोड़ा सा लेके चलें। तो अगर आप हाँ ये ठीक है। देखेंगे ना, चले कोड के सेंस में आ जाते हैं, तो कोड में तो आप देखेंगे कि मैंने अभी एक फाइल ऐड की, मैं उसी फोल्डर में हूँ, उस वो फाइल ये आ गई है। अब इसमें अगर आप ये देखेंगे ना, ये सोर्स कंट्रोल का जो थर्ड ऑप्शन है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसमें आपके पास चेंजेस हैं, और वो चेंजेस क्या हैं, वो कह रहा है कि पहले ये फाइल बिल्कुल ये एक नई फाइल जा रही है जिसमें ये टेक्स्ट जा रहा है। तो एक वो उसने मुझे वो फाइल दिखा, ये विजुअल स्टूडियो की कुछ वो पीछे वो फाइल्स हैं, ट्राइंग टू थिंक अबाउट दीस फाइल्स, ये कौन सी आई हैं, ये वो विजुअल स्टूडियो की ना रीड लॉग 2022 की अपनी कुछ फाइलें हैं, उसको आई मीन ऐड कर दी, क्योंकि मैंने भी वो फोल्डर खोला ही है, तो उसने साथ ही अपनी थोड़ी सी 2-3 फाइलें उसने बीच में एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अगर वो मैंने ना ये खोला होता ना, तो ये बिल्कुल साफ ही होना था, और सिर्फ बनानी थी मेरे को। तो इसको मैं बंद कर सकता हूँ, इसको बंद कर देते हैं अभी, और इन फाइल्स को हम बेशक डिलीट भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, बल्कि ये आ गया विजुअल स्टूडियो की फोल्डर, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, और अब देखते हैं यहाँ पे ये आ गया। वो विजुअल स्टूडियो ने का फोल्डर बनाया था, वो मैंने यहाँ से उड़ा दिया, सिर्फ अपनी फाइल रहने दी है। तो आप यहाँ देखेंगे वो दिखा रहा है कि एक ही फाइल यहाँ पे एक ऐड हुई है,
जिसमें ये कुछ टेक्स्ट है जो कि अवेलेबल है। अब ये क्या दिखा रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि मेरे पास सोर्स कंट्रोल, ये व्यू है मेरी मशीन का, कि मेरी मशीन में इस वक्त क्या हो रहा है। ठीक है, मैं मजीद फाइलें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं एक जल्दी से इसमें ये काम करता हूँ कि ये चलें, लेट्स से मैंने ये एक ही फाइल बनाई, आज का काम मेरा खत्म हो गया, मुझे बहुत ही छोटा टास्क मिला था। और मैंने अब इस अपना काम खत्म करके बेसिकली इसको इसको कमिट करना है। कमिट से मुराद है कि मैंने इसको अपनी लोकल रिपोजिटरी जो है उसमें इस फाइल को सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एडिट, कुछ भी कमेंट आप देंगे कि आपने क्या काम किया, तो मैं कहता हूँ एडिट इनिशियल फाइल और मैं इसको कमिट कर देता हूँ, यस। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब सोर्स कंट्रोल के चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई चेंज अब मजीद नहीं है, लेकिन फाइल ऑब्वियसली मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है। जिस फाइल में मैंने काम किया है इसको मैंने सेव भी कर दिया है। सोर्स कंट्रोल की लोकल रिपोजिटरी में ये मुराद मेरी मशीन में इसका चेंज कमिट हो चुका है। अच्छा, अब कुछ लोगों अगर मैं में जो इसमें छोटा सा कुछ कुछ, लोग जो हाँ जी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कमिट का मतलब है कि आपने अपनी लोकल फाइल में भी किया है, यानी कि ये चेंज अभी आपकी लोकल एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है, ये सर्वर पे नहीं गया अभी। अगर आप सर्वर पर जाके देखेंगे तो आपको ये फाइल नजर नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल, और ये सर्वर पे हम देख भी लेते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो अभी भी कुछ भी नहीं दिखा रहा, वो है कोई कोई फाइल शाइल कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो अभी सिर्फ मेरे इस लोकल मशीन पे ही पड़ी हुई। ठीक इसमें है, एक और चीज होती है स्टेजिंग की, वो बाद में हम करेंगे ना, तो अगर किसी के ज़हन में सवाल है तो स्टेजिंग वाला बाद में भी आएगा सवाल। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब लेट्स से मैं ये काम ही करता हूँ कि मैं कहता हूँ यार अब मैंने मजीद एक फाइल ऐड करनी है, उसका नाम है टेस्ट फाइल 2, और इसमें मैंने कुछ भी लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, और इसको सेव करना है। और जो पिछली फाइल थी इसमें मैंने ये जो जस्ट है ना ये, या ये टी मेरा छोटा था, मैंने इसको सही कर दिया, और फुल स्टॉप कुछ चेंजेस कर दिए मैंने एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है जी, दो काम किए मैंने। अब जो मेरा फाइल व्यू है वो तो मुझे वही दो फाइलें दिखा रहा है, मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, लेकिन जो गिट का व्यू है जिसका काम है कंटिन्यूअस ट्रैक करना, जैसे हमने पहले कहा था, इसने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। जो जो काम हो रहा है उस फोल्डर में उसने लगातार उस पर नजर रखनी है, और वो बताता जाएगा कि आप क्या चेंज कर रहे हैं। तो देखें पहली फाइल में आप देखेंगे कि वो एग्जैक्ट हाईलाइट करेगा कि मैंने इस टी को कैपिटल किया, और ये भी हाईलाइट कर रहा है कि मैंने ये फुल स्टॉप इसमें ऐड किया, जो कि पहले ये इसके प्रीवियस वर्जन में इस तरह की लगती थी, और अब जो करंट वर्जन है वो इस तरह का है। दिस इज द मोस्ट, यही पावरफुल फीचर है कंपैरिजन का, प्रीवियस से न्यू का, चेंज ट्रैकिंग का, जहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है कि कोड में क्या चेंज हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है ना, ताकि वो इसी तरह से सोर्स कोड मैनेजमेंट होती है। इसके बगैर तो आपको आइडिया कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं किसने क्या चेंज किया फाइल में, सवाए आपको डेट का, फाइल का मॉडिफाइड डेट चेंज होगी और कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा। और ये दिखा रहा है मुझे यहाँ पे कि ये फाइल, ये +1 की ये ऐड हुई है, ये पहली बार ऐड हुई है, इसमें कुछ टेक्स्ट आया है और पिछली फाइल में कुछ चेंज हुआ है। ठीक है जी, मैं इसको भी कमिट कर देता हूँ, मेड फर्दर चेंजेस समथिंग लाइक दैट। इसको भी मैंने एक कमिट कर सेकंड, दिया, अब ये अगर मेरे इसमें दोनों से चेंजेस। जी अच्छा जी। सॉरी, मैं कहता कि अगर सिर्फ में इनमें से एक करते ना, ताकि इनको स्टेजिंग का भी आइडिया हो जाता, लेकिन चले ठीक है, ओके है। अच्छा, वो स्टेजिंग मेरे ख्याल है थोड़ा सा एडवांस, ठीक है, हाँ चले ठीक है, उसको हम ठीक है। कवर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये सारा चेंज जो है ना मेरे पास लोकल मशीन पे है, ये सर्वर में नहीं गया जैसे इरफान ने पहले राइटली हाईलाइट किया। अब आपने अगर घर जाना है तो ये रिकमेंडेड होता है टिपिकली कि आप डेवलपर जब सारे दिन का काम अपना कर ले तो मिनिमम अपने जो चेंज है, जो भी वो काम उसने किया है, वो जरूर पुश करके जाए, सर्वर के साथ सिंक्रनाइज करके जाए, ताकि अगर उसकी लोकल मशीन खराब भी हो जाए, आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाए, विंडोज उड़ जाए, कुछ भी मसला हो सकता है, लैपटॉप खराब हो गया है, तो जो आपका चेंज है, जो आपने सारा दिन काम किया है या 2 दिन काम किया है, वो सारा का सारा एटलीस्ट सर्वर पर पड़ा होगा तो अवेलेबल होगा। ठीक है, अभी तो खैर इनिशियल सेटअप है, अभी सिंक भी नहीं किया हमने इसको उसके साथ। अब हम उस वहाँ जाते हैं, अब हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, इसको आप टूल से भी कर सकते हो और आप कमांड लाइन से भी कर सकते हो, इसको दोनों से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई डोंट नो, ओपन है, चॉइस है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप इसको। गिट पुश की अगर कमांड आप चलाएंगे, सॉरी फोल्डर ये नहीं है, फोल्डर है हमारा
अच्छा, ये देखिए इसने क्या किया। ये इवन आपको दिखाएगा भी कि उसने कितनी फाइलें जो है वो अपलोड की हैं, क्या चीज़ उसको वो मिली है। 7 ऑब्जेक्ट्स में लगता है अभी भी शायद कुछ फाइलें वो पड़ी हुई थी विजुअल स्टूडियो वाली, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग 7 ऑब्जेक्ट्स, बट लेट्स रिफ्रेश। इसने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए। तो ये यहाँ पे आपके हमारे पास 2 फाइल्स जो है वो आ गई, वही वाली जो हमने ऐड की है। अब आप देखेंगे कि अब वो व्यू एकदम चेंज हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट में कुछ फाइलें अपलोड हो गई हैं। तो वो दिखा रहा है कि ये वाली फाइल है, और ये दिखा रहा है टेस्ट फाइल 2 है। अगर आप इसमें जाएंगे तो ये आपको टेक्स्ट भी इसका नजर आएगा। कंटेंट में आपको ये ब्राउजर में ही दिखा दे क्या टेक्स्ट है। इसको आने दे, लोड हो रहा है। ये देखें, ये वो टेक्स्ट है इसका। हिस्ट्री में जाएंगे, उसकी सारी उसकी उसकी पुरानी हिस्ट्री दिखा देगा। ये देखें, अब आपके सामने मैंने क्या किया था, 2 बार इसमें कमिट किया था। पहला वर्जन था, फिर एक दूसरा वर्जन था, ठीक है ना। तो ये आपको इवन आप इसका जो पहला वर्जन था जिसमें टी छोटा था, ये देखिए वो भी साथ चला गया, ठीक है। तो दिस इज अगेन वेरी पावरफुल। फर्स्ट टाइम मैंने एक फाइल अपलोड की है सर्वर में, लेकिन वो सारी जो उसकी चेंज हिस्ट्री थी वो भी साथ चली गई है। अब सॉरी, मैं वही अपनी बात को यहाँ पे ठीक करता हूँ। असल में वो जब उसने पहली बार पुश किया ना, तो वो सारी वो जो हिस्टोरिकल ट्रैक ऑब्जेक्ट्स एवरीथिंग वो उसने एक बार सिंक्रोनाइज कर दी है सर्वर के साथ, इंक्लूडिंग द हिस्ट्री ऑफ द फाइल्स। तो ये देखें, ये भी इसमें आ गई। अच्छा, और आई थिंक यहाँ पे इसमें ऑप्शन होती है कंपेयर भी, ये कंपेयर भी कर सकते हैं। ये देखें, वही वही कंपैरिजन जो मुझे विजुअल स्टूडियो कोड मेरी लोकल मशीन पे दिखा रहा था, वही कंपैरिजन वेब पे भी, ब्राउजर पे भी नजर आ गया कि मैंने इस फाइल की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे वर्जन होंगे, लेट से उसमें 8 10 6 7 जितनी बार भी ये चेंज हुई है, भी दो को चूज कर सकते हैं और उनमें आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको ऑप्शन देता है कि आपने कंपैरिजन इसको किस तरह करना है। इसमें इनलाइन कंपैरिजन भी है, ये भी एक अच्छा फीचर है। और इसमें एक साइड बाय साइड वाला कंपैरिजन भी है। इनलाइन अभी लोड नहीं, लेट्स सी। स्ट्रेंज है कि अच्छा, मैं सिंगल फाइल सेलेक्ट हो गई मतलब। दोबारा से जाते हैं और इनलाइन को एक बार देख लेते हैं। ये आया और इसको इनलाइन करेंगे। इनलाइन ये करेगा, वो ऊपर नीचे रख देता है नए वर्जन को पुराने। ये भी कभी कभी कंपैरिजन में काफी फायदा देता है कि आपको ऊपर नीचे नजर आ रहा है, ये डॉट ऐड हुआ है, ये टी हुआ है, ठीक है ना। तो फाइल के चेंजेस, क्या चेंज हुआ था क्या नहीं हुआ था, बड़े अच्छे तरीके से टूलिंग से आपको पता लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना आगे ब्रांचिंग में चलते हैं। अब ये तो सिंगल मास्टर की ब्रांच है जिसमें सारा कुछ आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या किया, अगर आप देखेंगे तो गिट रिपोजिटरी को वो क्लोन करके मैंने पुश किया, ठीक है। ये एक ऑप्शन आपको और नजर आ रही थी जिसमें आप क्लोन करके पुश की बजाय डायरेक्ट एक अपना पूरा का पूरा कोड कर सकते थे यूआरएल पे। वो एक सेकंड ऑप्शन थी इसमें, इसी लिस्ट में आ रही थी। अम, तो हमने बेसिकली वो थोड़ा सा क्लोन वाला वो तरीका अपनाया, लेकिन 2 3 तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कोड को पुश कर सकते हैं, पहले से लिखे हुए इस कोड को पुल कर सकते हैं। अब अगर लेट्स से आप एक नए डेवलपर हैं और टीम को आपने ज्वाइन किया है, तो आप क्या करेंगे पहली बार, क्या दोबारा से कोड अपनी मशीन पर रख के पुश करेंगे या एग्जिस्टिंग कोड को पुल करेंगे, ठीक है ना। उसका आंसर है कि जो एग्जिस्टिंग टीम ने काम कर लिया है, आप उसी को पुल करेंगे, अपनी मशीन पे लेके जाएंगे ताकि आप उस पर कंटिन्यू कर सकें। उसका तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। वही आपने गिट क्लोन का वो कमांड लिखनी है, और ये वाली, और आपने यूआरएल देना है। तो जितना भी काम आपकी टीम ने किया हुआ है और जो फाइलें वहाँ पड़ी हुई हैं, वो आपके पास लोकल मशीन पे आ जाएंगी, ठीक है। और लोकल मशीन पे वहां पे आएंगी, जिस जिस फोल्डर में जाके आप गिट क्लोन की कमांड चलाएंगे, उस फोल्डर में वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं, थोड़ी सी ब्रांच की बात करते हैं कि ब्रांच कहाँ पे काम आती है। अब आप ये इमेजिन करें कि अगर मेरे पास 2 डेवलपर्स हैं और ज्यादा सारे डेवलपर्स हैं, और वो डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं, फीचर्स पे काम कर रहे हैं। अम, और वो मैं चाहता हूँ कि जब वो अपना काम फिनिश कर लें, तो
ये मेरी मास्टर ब्रांच है, ठीक है, ये आप यहाँ नोट करेंगे, ये लिखा हुआ है मास्टर, ये मेरी मेन ब्रांच है। मैं नहीं चाहता कि वो उस डेवलपर का काम सीधा डायरेक्ट मास्टर ब्रांच में आ जाए। अगर सीधा उसका काम मास्टर ब्रांच में आ जाएगा, लेट्स से उसका अनफिनिश्ड काम है, ठीक है ना, अभी उसने काम ही फिनिश नहीं किया, अभी अभी उसने 2-3 मेथड लिखे हैं, 2 क्लासेस लिखी हैं, अभी काम प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन वो घर जा रहा है और वो अपना कोड सिंक करना चाहता है सर्वर के साथ। तो वो अगर हम ये इसी तरह से छोड़ देंगे इसको, तो वो क्या करेगा, उसका अनफिनिश्ड काम कहाँ चला जाएगा, मास्टर ब्रांच में, इसी इसी जगह पे चला जाएगा। तो अगर अनफिनिश्ड काम यहाँ चला जाएगा तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है, उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जो दूसरे लोग हैं डेवलपर्स, वो जब भी इस कोड को गेट करेंगे तो उनको वही उसका अनफिनिश काम मिल जाएगा, और हो सकता है वो इवन यहाँ तक उसने किया होगा वो कंपाइल भी नहीं होता या बिल्ड भी नहीं होता, क्योंकि अभी तो उसने फिनिश ही नहीं किया काम। तो वो वहाँ पे मसला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका मास्टर ब्रांच जो है वो खराब हो गई है, किसी ने अनफिनिश्ड काम उस पर अपलोड कर दिया। तो इसका तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी ब्रांच बनाते हैं। ब्रांच क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये है मास्टर जिसमें सारी फाइलें पड़ी हुई थी, ठीक है। जब भी डेवलपर ने एक टास्क पे काम शुरू करना है तो वो उस टास्क की एक ब्रांच बनाता है, ठीक है। उस ब्रांच में वो अपना काम करता है और कंटिन्यू करता है, ठीक है। लेट्स से टास्क आईडी 1 था, तो टास्क 1 की एक ब्रांच लेट्स से बनाता है, उस पर काम करता रहेगा, उस ब्रांच को सर्वर के साथ सिंक करता रहेगा। लेकिन वो ये सारी की सारी ब्रांच सिर्फ उस एक सिंगल डेवलपर के पास अब होगी, जब तक वो रेडी होगा कि जी मैंने काम कर लिया है, अब ये तैयार है, अब आप मेरे इस काम को मास्टर के साथ मर्ज कर दें। इसको हम बोलते हैं, इस मर्ज करने के प्रोसेस को बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना। कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, इसके इस काम को जो ये करना चाह रहा है, मर्ज कराना चाह रहा है, ये कोई सीनियर डेवलपर रिव्यू करेगा या कोलीग्स रिव्यू करेंगे, अगर वो भी राजी हैं उसके काम से, वो अप्रूव कर देंगे। तो ये जो सारे टास्क में जो भी चेंजेस थी, ये मास्टर के अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम मेरा ख्याल है 2 ही लेवल लेते हैं, फिर थोड़ी सी फिर पैटर्न्स की बात कर लेंगे कि प्रोजेक्ट्स में पैटर्न्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक ब्रांच वाला छोटा सा काम करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है या इसको लेके तो इरफान आप पूछ लें यहाँ पे टीम से, और मीनवाइल हम इसको जल्दी से लेके हाँ, आगे अगर किसी का ब्रांच बना के आगे सवाल चलते है तो एक सवाल था अभी अली खालिद का कि रिगार्डिंग एसएसएच कनेक्शन, जिट को आप ना गिट को रादर एसएसएच के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक फॉर द सेक ऑफ लाइक वाइडर ऑडियंस हेयर, अभी आप यही समझें कि बस गेट प्रोटोकॉल के थ्रू ही आपने कनेक्ट करना है, एसएसएच वाला अभी बाद में फिर किसी दिन उसको हैंडल करना है। तो देर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स टू कनेक्ट, राइट? आप उसको HTTP के थ्रू भी कर सकते हैं और गिट के थ्रू भी कर सकते हैं, और अभी आप गिट के थ्रू ही बिल्कुल। और मैं इसमें छोटी सी बात ये कर दूं कि आपने एक चीज नोट नहीं की कि मैंने जब गिट क्लोन किया तो कोई सिक्योरिटी कोई चीज पूछी नहीं, उसने मुझे कोड दे दिया और इसके साथ लिंक करने दिया। तो ये हुआ कैसे, असल में ना मेरे मशीन में मेरा लॉगिन चल रहा है, तो उसने कोई तंग नहीं किया, कोई प्रॉम्प्ट नहीं किया। टिपिकली क्या होगा, अगर आपने dev.azure.com को सेटअप किया है तो इसमें आपने यूजर्स ऐड किए होंगे, ठीक है। मैंने आपको कल लास्ट सेशन में बताया था कि 5 यूजर्स तक ये फ्री है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आके अपने इसकी शुरू में जाके आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जाके यूजर्स, ये वो आप अप टू 5 यूजर्स यहाँ ऐड कर सकते हैं, उनको लाइसेंस मिल जाता है इस टूल को यूज करने का, ठीक है। तो जब इनमें से कोई यूजर जब पहली बार गिट क्लोन की वो कमांड चलाएगा ना, जैसे यहाँ पे ये 2 यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड यूजर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जब मैंने ये गिट क्लोन की कमांड चलाई थी यहाँ पे, वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट खोलेगा और वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा जो आपने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, ठीक है ना। ये टिपिकली माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होता है। अब लेकिन आई थिंक यू कैन डू अदर अकाउंट्स एज वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स सी। ऐड यूजर किधर है, ये आप यूजर का नाम देंगे और वो देंगे, और नहीं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ही चाहिए होगा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सही कह रहे हैं। तो ये जब प्रॉम्प्ट आएगा ना आपको, तो आपने अपने उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के यूजर नेम पासवर्ड देके लॉग इन कर लेना है,
तो फिर वो अलाउ करेगा आपको इस रिपोजिटरी के साथ सिंक्रोनाइजेशन करने का, ठीक है, वरना वो अलाउ नहीं करेगा। इसके अलावा फिर गिट के साथ कनेक्शन के स्टैंडर्ड तरीके हैं। गिट का आप लोकल यूजर भी बना सकते हैं, वो फिर मेरे ख्याल में एडवांस टॉपिक्स हैं, बट यू कैन हैव अदर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स टू कनेक्ट टू गिट। बट आई वुड रिकमेंड कि आप सिंपल यहाँ पे आके यहाँ यूजर्स बनाएं, अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पे ऐड करें, टीम का ऐड करें, और व्हेन दे विल ट्राई टू वर्क विद, जब वो गिट की कमांड चलाने की कोशिश करेंगे तो पहली बार वो मांगेगा लॉगिन, और मेरे ख्याल में वो फिर वो टोकन सिक्योरिटी टोकन सेव कर लेता है। आई बिलीव 2 दिन के लिए वो वैलिड रहता है, तो वो 2 दिन बाद एक्सपायर होगा तो वो दोबारा से आपसे फिर एक बार प्रॉम्प्ट मांगेगा, ठीक है। तो ये था सिक्योरिटी वाला थोड़ा सा एस्पेक्ट। वापस जाते हैं। इसमें यूजर मैनेजमेंट की कौन क्या कर सकता है, वो काफी सारी डिटेल है इसमें। हु कैन क्रिएट दीज वर्क आइटम्स, हु कैन क्रिएट गिट रिपोजिटरी, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, वो काफी एक्सेस मैनेजमेंट है ऑथराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, इस टूल की। अच्छा जी, वापस आते हैं, हम ब्रांचेस में जाते हैं। अच्छा, ब्रांच क्रिएट करने से इसी एग्जांपल को लेके फिर ब्रांचेस बना लेते हैं आज, और फिर मैं वेब एप्लीकेशन इसमें सेटअप कर दूंगा। फिर आगे जो हम एग्जांपल लेके चलेंगे ना, वो वेब एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे, टेस्ट फाइलों की बजाय, ठीक है जी। अभी हम इन हाँ, टेस्ट अभी फाइलों पे मेरे एक ख्याल ब्रांच में बना। हाँ, बस एक ब्रांच के थ्रू, यानी कि आपको एक टास्क असाइन हुआ है, उसके लिए आप एक ब्रांच बनाओगे, ताकि अगर आप शाम को घर जा रहे हो, अपनी ब्रांच में चेक इन कर भी देते हो और गलत भी है कुछ, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो वो एक फ्लो चला बिल्कुल। लेते हैं। तो बल्कि अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, हम क्यों ना टास्क से ब्रांच बनाएं, ये एक अच्छा, बड़ा अच्छा लिंक है ये इसमें राइट, राइट। रिपोजिटरीज का और टास्क जो हमने पिछले सेशन में बनाए थे। अब लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक टास्क है, सेटअप एप्लीकेशन इन एडी फॉर इंटीग्रेशन, ये कैसे एक डमी टास्क ले लेते हैं, चलो इसको ओपन करते हैं। अब ये मुझे असाइन किया है, मेरे लीड ने या मेरे मैनेजर ने कहा है जी तुमने इस टास्क पे काम करना है। मैं इस टास्क को खोलूंगा और इसमें बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है। अच्छा, मैंने टास्क समझा, मुझे डिस्क्रिप्शन समझ आई, अच्छा तो मैंने क्या करना है, और सीधा यहाँ पे ऑप्शन है कि आप यहीं से ब्रांच बना सकते हैं। मैं ये 3 डॉट को क्लिक करूंगा यहाँ पे, और मैं न्यू ब्रांच। न्यू अच्छा, ब्रांच। कुछ लोग नए हैं जो शायद पिछले सेशन में नहीं थे। पिछले सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से यूज़ केसेस बनते हैं, और फिर यूज़ केसेस जो आपका बिजनेस एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइन कर रहा है। दिस सेशन, अब शेयर माय स्क्रीन अगेन। जी, मैं वही ये कह आपको नजर रहा आ था रही कि ये 4 यूजर स्टोरीज से निकलते हैं, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। बिल्कुल ठीक है। और ये जो फिर आप टास्क के साथ ही आप जो है ना वो ब्रांच बना सकते हैं, वो लिंक हो जाता है बेसिकली। आप या ब्रांच बना के टास्क से लिंक कर लें, या टास्क से ब्रांच बना लें, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कर क्या रहा है, ये दिखा रहा है कि आप एक ब्रांच बना रहे हैं बेस्ड ऑन रिपोजिटरी से, वो जो हमारी रिपोजिटरी बनी हुई है, मल्टीपल भी हो सकती हैं, आप चूज कर सकते हैं, और उस रिपोजिटरी की किस एग्जिस्टिंग ब्रांच से इस ब्रांच को बनाना है, क्योंकि ब्रांच जो है ना वो दूसरी ब्रांचेस से भी बन जाती है। अभी तक हमारे पास सिर्फ मास्टर है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट्स से कह देता हूँ कि जी सेटअप, इसका नाम लिख देते हैं। अच्छा, ये भी एक नेमिंग कन्वेंशन है, इस टास्क का आईडी है 41, ठीक है ना। तो ये नेमिंग कन्वेंशन है थोड़ी सी, वैसे कि आप टास्क का जो भी आईडी है उसके साथ डैश करके जो भी आप काम करना चाहते हैं, ताकि ना फिर टीम में बड़ा एक ब्रांच के साथ पता लगता है कि डेवलपर किस टास्क पे काम कर रहा है। तो हम ये कन्वेंशन नॉर्मली यूज करते हैं। तो 41 सेटअप न्यू फाइल्स, अभी मैं इस तरह से कोई नाम दे देता हूँ ब्रांच का, और क्रिएट ब्रांच कर देता हूँ, ठीक है। अब आप नोट कीजिएगा हुआ क्या है। वो देखें, वो मुझे वापस रिपोजिटरी सेक्शन में ले गया है, और वो मुझे मेरी वही फाइलें दिखा रहा है जो हमने पहले देखी हैं, क्योंकि हमने मास्टर से इसी ब्रांच बनाई है। तो जो कुछ भी मास्टर में पड़ा होगा उस वक्त, वो सारा का सारा एज इट इज इस नई ब्रांच में आ जाएगा, ठीक है जी। और आप यहाँ नोट करेंगे कि यहाँ पे वो वाली ब्रांच सेलेक्टेड है जो मैंने अभी बनाई है, और मास्टर अब नहीं सिलेक्टेड, ठीक है ना। अब इस ब्रांच को मैंने
अगर पॉइंट करना है तो मैं चेकआउट की कमांड चला सकता हूँ, गिट चेकआउट की कमांड है, और साथ साथ ब्रांच का नाम आप दे सकते हैं, या आप यहाँ पे जाके अगर आपने विजुअली करना है तो कोड में सिंपल आप ये देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है मास्टर, यहाँ पे आप जाएंगे तो वो देखें वो क्या करेगा, वो आपको वो ब्रांच भी दिखा देगा जो आपने अभी बनाई है। ये देख रहे हैं आप, ये 41 सेटअप न्यू फाइल्स, इसको मैं क्लिक करूंगा तो हुआ क्या है, अभी ये मुझे दिखा रहा है, मेरा टूल दिखा रहा है कि मेरी करंटली सेलेक्टेड ब्रांच जो है वो ये है 41 सेटअप न्यू फाइल्स, और उसमें मुझे ये फाइल, ठीक है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अब मैं डेवलपर हूँ, मैंने नया टास्क लिया है और मैं इस पर काम शुरू करने लगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको एक आधी लाइन इसमें फाइल में और डाल देता हूँ, दिस इज जस्ट अ सैंपल फाइल, आई एम एडिंग सम न्यू वर्क हेयर, ठीक है जी। एक मैंने ये किया और एक मैंने टेस्ट फाइल 3 भी अपने काम के हवाले से ऐड कर दी, दिस इज माय न्यू फाइल बेस्ड ऑन टास्क 41, कुछ भी मैं अभी तो लिख रहा हूँ, टिपिकली आपका कोड होगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये दो काम मैंने किए, और एज ए डेवलपर मैंने देखना है कि जी मेरा अब मैं काम फिनिश कर रहा हूँ तो मुझे दिखाएगा कि मैंने क्या काम किए। वो कहेगा जी पहला तो आपने ये लाइन डाली है एक एक्स्ट्रा इस फाइल में, और आपने ये फाइल एक एक्स्ट्रा डाली है, मैं जी इस काम से बड़ा खुश हूँ, मैं कहूँगा जी एडिड लॉजिक फॉर माय न्यू टास्क, समथिंग लाइक दैट, मैंने कुछ लॉजिक उसमें ऐड की है और मैंने कमिट कर दिया। अच्छा अब देखें, अब ये मुझे ऑप्शन क्या दिखा रहा है, ये जो मैंने अभी कमिट किया है ये कमिट हुआ है मेरी लोकल गिट की, जो लोकल उसकी रिपोजिटरी की कॉपी है उसमें, ये सर्वर में नहीं है अभी। इसको मैं अगर सिंक की कमांड होती है इसमें, ठीक है ना, सिंक क्या करता है बेसिकली, सिंक एट सर्च क्या करता है, सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज का मकसद क्या है कि ये मेरा लोकल को मेरे सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज कर देगा। तो ये बिहाइंड द सीन कर क्या रहा होता है, ये पुल और पुश दोनों चलाता है, पहले सर्वर वाली चीजें लोकल ले आता है, लोकल वाली चीजें सर्वर के पास ले जाता है, तो वो पुल भी हो जाता है पुश भी हो जाता है। तो बेसिकली इवेंचुअली क्या होगा, मेरी मशीन मेरे सर्वर की जो रिपोजिटरी वहां पड़ी है वो उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको सिंक करता हूँ, थोड़ा सा हमारा टाइम सेशन का ओवर हो रहा है, लेकिन हम इसको बस इसी चीज कॉन्सेप्ट को वाइंड अप करते हैं अभी इन अ फ्यू मिनट्स। तो अगर आप Right. देखेंगे तो यहाँ पे मैं अगर इस पे आया हूँ इस ब्रांच में, तो मेरे पास अब वो तीनों फाइलें, वो मेरा काम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं अगर मास्टर को स्विच करता हूँ तो देखिए मास्टर में क्या पड़ा हुआ, मास्टर में वो दो फाइलें हैं, लेकिन मैं अगर मेरी अपनी ब्रांच पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास वो मेरा काम, क्योंकि ये मेरा टास्क था, ये मेरी तीसरी फाइल यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट के बाद हम इसको इस सेशन को फिनिश करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट टाइम। वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अब चाहता हूँ कि जी मैंने तो काम फिनिश कर लिया, अब ये थर्ड फाइल ये बाकी टीम के पास चली जानी चाहिए, आई एम रेडी, दिस दिस माय वर्क शुड बी मर्ज्ड अप टू मास्टर, इसको वापस ओरिजिनल रिपोजिटरी में जाना चाहिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने भी बताया था आपको, उसको बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने की, पुल ये ऊपर बटन है, रिक्वेस्ट में ये ऊपर जाऊंगा मैं, राइट साइड पे बटन है। जी ऊपर भी बटन है, वो यहाँ से भी ऑप्शन है पुल रिक्वेस्ट की। तो मैं कहूँगा जी न्यू पुल रिक्वेस्ट मुझे क्रिएट करनी है। अच्छा, वो कहेगा, वो डिफॉल्ट अभी चूंकि है ही हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, तो वो उसने खुद ही हिसाब लगा लिया कि ये जो डेवलपर है ये अपनी इस ब्रांच को इनटू मास्टर, अपने इस काम को मास्टर के साथ लेके जाना चाह रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए वो जो मैंने कमेंट डाला था वो होते हैं मीनिंगफुल कमेंट, वो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। रिव्यूअर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ पे अपने डेव लीड वगैरह को ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये अली असगर है यहाँ पे, या इमरान में अभी अपने, ठीक है ना, आप कोई टीम सेलेक्ट करेंगे और आप ये करके आप बोलेंगे जी क्रिएट कर दो पुल रिक्वेस्ट। अच्छा, अब देखें ये क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का क्या मकसद है, अब ये जो है मुझे ईमेल, जो भी आपका टीम लीड है, जो लोगों को आपने वहां पे पिछली स्क्रीन पे सिलेक्ट किया है, उनको एक ईमेल चली जाएगी। ईमेल में आएगा कि जी जो डेवलपर था वो उसने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट, आपके रिव्यू प्लीज को रिव्यू करें। अच्छा, मेरे पास ये लिंक आएगा,
मैं इस लिंक को जब ओपन करूंगा तो मुझे यही पेज नजर आएगा। इस पेज में मुझे लिखा हो, मुझे पता लगेगा कि अच्छा ये एक पुल रिक्वेस्ट आई है, ये इमरान शफकत ने क्रिएट की है, और मैं जब फाइल्स पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा अच्छा इसने किया क्या है। इसने ये एक लाइन ऐड की है और इसने एक तीसरी फाइल ऐड की है। ठीक है, क्या मुझे समझ आ रही है ये चीज़? ठीक है, फिर मैं कहूँगा ओ यार ये तो जो फाइल थी मेरी सी शार्प की फाइल थी या एपीआई फाइल थी, ये जो काम किया ये तो गलत फाइल में कर दिया, ये तो यहाँ पे करना ही नहीं था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें, आप सेलेक्ट करके जो चीज़ नहीं ठीक की उसको सेलेक्ट करें, इनलाइन कमेंट्स, दिस शुड नॉट बी हियर, इट शुड बी समवेयर एल्स। ठीक है, इट शुड बी इन ए डिफरेंट फाइल, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी। और मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा, अब जो डेवलपर, अभी देखिए अभी तक क्या हो रहा है, ये कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है मेरे उस चेंज पे डेवलपर के साथ। वो काम अभी तक मास्टर में नहीं गया, ना ही मास्टर में ये वाला चेंज अगर गलत है, मुझे पता है ये गलत चेंज है, ये इसने जाके ओरिजिनल मेरी एप्लीकेशन को खराब नहीं किया, क्योंकि अभी तक, ठीक है ना, ये चीज इसीलिए ये पुल रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट, कोड रिव्यू का कॉन्सेप्ट, ये कोड रिव्यू हो रहा है जो हमने अभी प्रोसेस बता रहे हैं, दिस इज द रिव्यू प्रोसेस। अब डेवलपर को मेरा ये कमेंट नजर आएगा, वो जब अपने पास खोलेगा वो कहेगा अच्छा ओहो ये तो मुझे यहाँ लाइन डालनी नहीं थी, चलो मैं जल्दी से इसको ठीक करता हूँ। वो क्या करेगा, अपने कोड में जाएगा और ये जो उसने ये लाइन यहाँ पे ऐड की थी इसको यहाँ से डिलीट कर देगा, और लेट्स से अपनी जो थर्ड फाइल थी उसकी मिसाल है, यहाँ पे उसको ऐड करके जल्दी से चीज़ों को सेव करेगा और फिर से कमिट करने की कोशिश करेगा। एड्रेस द इशू मेंशन्ड इन कोड रिव्यू। मैंने जी कोड रिव्यू को फटाफट एड्रेस करके अपना काम करके सिंक कर दिया। अब ये बताएंगे सिंक किधर गया? ये अभी भी मेरी ही ब्रांच में जा रहा है, मास्टर को नहीं, मास्टर नहीं तंग हो रहा, मास्टर में सारा कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा। अब आप इधर आएंगे, अब आप डेवलपर हैं, आपकी जिम्मेदारी रिप्लाई लिखेंगे आई हैव नाउ फिक्स्ड दिस, या आप कमेंट लिख रिप्लाई एंड रिजॉल्व। ये देखिए जी, मैंने रिप्लाई भी कर दिया और एक कमेंट को मैंने रिजॉल्व भी कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए उसका स्टेटस आ रहा है एक्टिव है। ठीक है जी, तो इसका आ रहा है कि ये वाला कमेंट एड्रेस हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है। अच्छा, अब मैं दोबारा से आया हूँ एज ए लीड, और मैं फिर से इस पुल रिक्वेस्ट को खोलता हूँ। डेवलपर कह रहा है जी मैंने रिजॉल्व कर लिया। मैं कहता हूँ अच्छा जी, देखते हैं इसने क्या किया। अब मुझे इसका चेंज, फाइल में जाऊंगा, मुझे उसका चेंज मैं दोबारा से जाकर देखूंगा तो वो मुझे नजर आएगा कि उसने ठहरे यहाँ पे अगर मैं जाऊं, मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया इसको, दिस इज गोइंग इनटू मास्टर। अच्छा, अब देखिए हुआ क्या है, मुझे सिर्फ थर्ड फाइल क्यों नजर आ रही है, क्योंकि जो पहली फाइल थी उसमें जो चेंज था वो तो मैंने वैसे ही हटा दिया। तो अब वो ये उसको पता लग गया कि जो चेंज है मास्टर के साथ वो सिर्फ तीसरी फाइल में है, पहली दो फाइल में तो चेंज ही नहीं है, तो उसने वो फाइल ही उड़ा दी यहाँ से। ठीक है ना, जिसमें मैंने सवाल उठाया था। और मुझे फिर भी, लेकिन मुझे कमेंट्स की उसकी हिस्ट्री नजर आ रही है कि कमेंट फिर भी पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फाइलों में चेंज वो वाला खत्म हो गया क्योंकि वो फाइल ही चेंज नहीं रही। अब आई एम हैप्पी विद दिस, मुझे मुझे अब जो डेवलपर काम मुझे आ गया, तो मैं हिट कर दूंगा अप्रूव। ठीक है जी, मैंने अप्रूव कर दिया टीम लीड। अब ये डिफरेंट टीम का प्रोसेस होता है, टिपिकली जो डेवलपर है ना उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको कंप्लीट करे। ठीक है, अब डेवलपर अगर इसको कंप्लीट दबा देगा तो वो ये मुझसे ऑप्शन पूछेगा कि जी क्या करना है। ये देखें, ये जो टास्क है, क्या इस टास्क को ये जो ब्रांच बनी हुई थी, इस ब्रांच को क्या मैं डिलीट कर दूं? तो टिपिकली आई वुड रिकमेंड कि जब ब्रांच बनी ही उस काम के लिए थी और आपने काम कर लिया है तो उस ब्रांच को डिलीट कर दें, क्योंकि वरना बहुत सारी ब्रांचेस के हैंग अराउंड रहती हैं। और देखें ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि क्या मैं जो टास्क था उसको भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट मार्क कर दूं। मैं कह रहा हूँ जी दोनों काम कर दूं, मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। अब जल्दी से देखते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ है। अब वापस जाते हैं और देखते हैं, पहले तो देखते हैं टास्क के साथ क्या बना। कोड में चले जाते हैं जल्दी से। आई थिंक वी जस्ट कंक्लूडिंग दिस इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। अच्छा भाई, बॉडी लोड स्लो हो रहा है। जितनी देर में लोड हो रहा है
ये अगर आप जी। गिटहब पे यही प्रोसेस कर रहे होगे तो वहाँ पे इश्यूज होते हैं, वहाँ पे टास्क या यूजर स्टोरीज नहीं होती, हर चीज एक इशू की बेस पे होता है। तो उधर आप बेसिकली इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे होगे। प्रोसेस यही होगा, जो नोमेनक्लेचर है या जो थोड़ा बहुत क्या कहना चाहिए, जो थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। उधर पुल रिक्वेस्ट डिफरेंट तरीके से होगी। तरीका तो बेसिकली यही होता है, यानी कि उधर जो इंटरफेस होगा कि जिसके अंदर आप कमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा। आई थिंक गिटहब में नहीं है। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में इनलाइन कमेंट्स हैं गिटहब में इमरान, मेरा नहीं ख्याल। गिटहब में मैंने वैसे पुल रिक्वेस्ट नहीं एक्सपीरियंस किया, नहीं। हाँ शायद उधर इनलाइन इसमें तो कमेंट्स है, नहीं, लेकिन अगेन GitHub इट्स अ टूल स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये पावरफुल टूल है। अब देखिए उसने क्या किया है, उसने ये वो टास्क भी मेरा ऑटोमेटिकली, देखिए वो क्रॉस भी हुआ है, इसको मैं खोलूंगा भी तो ये क्लोज। एक तो उसने खुद से उसको, वही मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट की थी एज ए डेवलपर, मैंने कहा यार मेरी ब्रांच भी उड़ा दे और मेरा टास्क भी क्लोज कर दे। ठीक है जी। अगर आप ब्रांच में आप जाएंगे और आप देखेंगे तो वो देखें सिर्फ एक ही ब्रांच पड़ी है मास्टर, वो ब्रांच भी गई क्योंकि काम अब रिव्यू हो गया है, चेक हो गया, हर चीज़ आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो गई, वो फिर भी आप, आई थिंक देयर इज स्टिल अ वे टू सी द ओल्ड ब्रांचेस। यहाँ पे एक व्यू है जिससे आप मैनेज रिपोजिटरी, सॉरी मैनेज ब्रांचेस में ना, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ब्रांचेस वाली, ये है ब्रांचेस वाले। तो कंप्लीटेड ब्रांचेस भी देख सकते हैं, ये देखें ऑल ब्रांचेस क्या हैं, और स्टिल इज डेफिनेटली अ वे जिसमें आप वो जो उड़ा दिए ब्रांच उसको देख सकते हैं। मैं देख लूंगा उसकी सेटिंग की तरह, व्यू हिस्ट्री, ये तो सिर्फ मास्टर का दिखा रहा है। चलो मैं देख लूंगा कि वो ब्रांच आप कैसे देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल टिपिकली वो होता ही है कि टीम में जब 3-4 महीने काम चल रहा है ना, और हर टास्क की ब्रांच बन रही है, और डेवलपर्स क्या करते हैं, ब्रांचेस वहीं छोड़ देते हैं। तो ये जो ब्रांचेस का व्यू है ना, यहाँ पे 36,000 ब्रांचें नजर आ रही होती हैं। तो वो बेहतर है जब एक बार मर्ज होगी, चीज खत्म होगी तो उसको खत्म कर दें, फिर से काम शुरू करना है। अगर बग रेज हो गया इस पे, तो उस बग की दोबारा से ब्रांच बनाए। ठीक है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है, पुरानी ब्रांच में जाके बग फिक्स ना करें। तो क्रिएट अ न्यू ब्रांच एंड देन फिक्स अ बग इन दैट न्यू ब्रांच, ताकि वो बग फिर उससे लिंक होगा। राइट, कॉन्सेप्ट सिंपल है ना, हर जो टास्क डेवलपर कर रहा है, तो जब आप एक्चुअल कोडिंग कर रहे हो वो भी टास्क है, और जब आप बग फिक्स कर रहे हो वो भी एक टास्क है। तो हर टास्क की आईडी की बेस के ऊपर एक ब्रांच बना लें, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है जी। गिटहब में ये चीज नहीं होती कि आप यूज केस या टास्क की बेस पे बना सके। तो ना इशू है ना, उधर हर चीज इशू है। सो बेसिकली वो इशू की बेस पे ही बनेगा, प्रोसेस वो भी यही है, सिर्फ थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का फर्क है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो आई थिंक इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, टाइम थोड़ा सा हमारा ओवर हो गया है। आई थिंक एजेंडा में ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा एम्बिशियस किस्म का रखता हूँ एजेंडा, लेकिन चीज़ों को आगे करते जाएंगे और सेशंस ऐड करते जाएंगे। तो वी विल देन सी के जो हाँ हमने आगे श्योर चीज़ें इसको कवर करनी है, वो फिर हम उसको उस तरीके से जो है वो चीज़ों को आगे आगे कवर करते जाएं। श्योर श्योर। सही है जी। थैंक यू वेरी आज के मच हवाले से इमरान। कोई आई क्वेश्चन है थिंक तो? आज का सेशन तो काफ़ी अच्छा था। अगेन कुछ लोगों के लिए शायद ये ट्रिवियल का काम हो, बट चूंकि कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश हैं तो हम चाह रहे थे कि बिल्कुल क्लीन स्लेट से लेके चलें। अगले सेशन में थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस चीज़ें आएंगी। अगेन इमरान ने इस तरह कहा कि आप लोग ये फ्री है बिल्कुल अपने ठीक है, और मैं वो हॉटमेल इंकरेज अकाउंट से करूंगा कि जाके कोशिश करेंगे क्रिएट साथ कर साथ लें। एक छोटा सा एक खुद से भी करते जाएंगे आप, तो फिर ज्यादा अच्छे सवाल भी करते जाएंगे। और बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच टीम।